Welcome to ICARNR CSS Silver Jubilee Celebration, a journey of research, innovation, product, outreach, and excellence in the area of seed spices. ICARNR CSS is dedicated to the improvement of seed spices and the welfare of their stakeholders since its inception in 2000. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारत सरकार द्वारा बीजीय मसालों के महत्व एवं इसकी क्षमता को देखते हुए एनआरसीएसएस की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। भारत में बीज मसालों की बढ़ती मांग और किसानों की पैदावार को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 25 वर्ष पूर्व यहाँ तबीजी में मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। इस संस्थान ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिसके लिए मैं यहाँ सभी साइंसदान और कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। Mandates of ICARNR CSS are basic, strategic, and applied research on genetic resource management, crop improvement, production and protection technologies for enhancing and sustaining productivity of safe seed spice, transfer of technology and capacity building of stakeholders. Respected dignitaries, scientists, प्यारे किसान भाई, it's my privilege and honor to welcome you all here. You all here on this 25th year of inception of this great institution. When we are today celebrating the silver jubilee of this very prestigious institution, we must see that all these years have been very, very achieving, very, very inspiring for all of us. This journey couldn't have been possible without the best efforts of our dignitaries and the dream of our then DG and Secretary dear Dr. R.S. Padauda ji. So we are fortunate that this institution was born on that day, on 19th of January 2000. This couldn't have also been not possible without the best efforts of our seniors and all those who had been instrumental in establishing this institute. आज जिस भव्य परिसर में हम इस केंद्र की सिल्वर जुबली मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसकी स्थापना 22 अप्रैल 2000 को पद्म भूषण डॉक्टर आर.एस. परोदा, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग भारत सरकार एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 22 अप्रैल सन 2000 को संपन्न की गई थी। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर की योजना भारत सरकार द्वारा 9th 5-year प्लान के अंतर्गत अक्टूबर 1999 में स्वीकृत की गई थी। इसके लिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तबीजी में 50 एकड़ भूमि प्रदान की गई। मैंने इस केंद्र के विशेष कार्याधिकारी के रूप में 28 जनवरी 2000 को कार्यभार ग्रहण किया था। भूमि अधिग्रहण के बाद सबसे बड़ी चुनौती वहां पर बेसिक एवं आधारभूत सुविधाएं जुटाना था। मैं अकेला था, कोई अन्य साथी, सहयोगी अथवा मददगार नहीं था। अधिग्रहित की गई भूमि पर कोई भी बिल्डिंग अथवा किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। इस जमीन पर पिछले कई वर्षों से कोई खेती नहीं हो रही थी, अतः पूरी जमीन पर बबूल तथा अन्य प्रकार की गहरी जड़ों वाली झाड़ियां हर जगह मौजूद थी। एक कांटेदार झाड़ियों का बड़ा भारी एक जंगल वहां पर मौजूद था। इस जमीन पर चूंकि कोई बाउंड्री या तार बाड़ नहीं थी, अतः आवारा जानवर चारों ओर घूमते रहते थे। मैंने अपने स्तर पर कार्य योजना बनाकर कार्य आरंभ किया। अपने साथ सहयोग के लिए केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान गोधरा से डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री सुरेंद्र सिंह T5
टेक्निकल अफसर को इस केंद्र पर ट्रांसफर कराया। स्वर्गीय डॉक्टर बीबी वशिष्ठ के कार्यकाल 2003 से 2008 के दौरान नई प्रशासनिक इमारत का निर्माण किया गया और सभी बुनियादी प्रयोगशालाएं अस्तित्व में आईं। Namaskar everybody. Hearty congratulations on completing 25 remarkable years of pioneering research and innovations. Historically, Calicut and Ajmer both are connected with spices trade because here at Ajmer during British period it was just a start of East India Company for entry in India. Then Sir Thomas Ray, he visited Ajmer and met Badshah Shahjahan for seeking permission for trade. Considering the importance of seed spices, so-called dry land spices, ICR established NRC on seed spices to conduct research to address national and regional issues. Professor Anwar, Director of NRCSS, recalls his experience with NRCSS. I had the privilege and honor to be the director of this center from 2008 for a term. During this time, I directed the research of the seed spices in the entire country. The significant features of my term were that I re-engineered the center and made 5 working groups. These were crop improvement, crop production, crop protection, basic sciences, and social sciences. Another important feature of my term was that we registered the Society for Seed Spices and started our own journal. I am happy to learn that this journal has improved in the present times with a good rating at the NAS Center. मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर सभी को इस रजत जयंती की बधाई देता हूं और जहां तक मेरे निदेशक काल में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र पर जो कार्य प्रमुख तौर पर मैंने एक टीम वर्क के रूप में वहां पर साइंटिस्ट की जो हमारे साथी थे और दूसरे कर्मचारी थे उनके सहयोग से जो करवाए उसमें सबसे प्रमुख मैं कहूँगा एक तो क्लीननेस ड्राइव। हमने उस कैंपस को पार्थेनियम, प्लास्टिक और पेपर फ्री किया सबसे पहले एक साल के रिकॉर्ड टाइम में। जब मैंने 1 सितंबर 2012 को ज्वाइन किया था उसके बाद 1 साल के रिकॉर्ड टाइम में उस कैंपस को पूरे को क्लीननेस ड्राइव चला के सामने भी और अंदर तो बिल्कुल पार्थेनियम, पेपर और प्लास्टिक फ्री किया। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम मैंने किया वो सीड को मजबूत करने का किया। जो बीज उत्पादन था वो जितना उस केंद्र की आवश्यकता के अनुसार या किसानों की आवश्यकता के अनुसार उसको मजबूत किया और बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन कराया गया। और किसानों के लिए जो किसान मेले होते हैं, पहले 1 दिन का किसान मेला होता था साल में एक बार, 2 बार हमने किसान बीज मेले 3-3 दिन के आयोजित किए और उसमें बड़े पैमाने पर किसानों को मैसेज गया, संदेश गया कि हाँ राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम बीजीय मसाला फसलों के अनुसंधान को लेकर, बीज को लेकर कर रहा है, वो बात भी की। तीसरा चीज सोलर सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और गेस्ट हाउस है उसके ऊपर आवश्यकता के अनुसार बड़ा जो ना सोलर सिस्टम लगवाया गया जो आज कार्यरत है बिल्कुल सुचारू रूप से। इसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जैसा मेरा अनुभव था पूसा के अंदर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट जो कि आजकल सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, उसी को करते हुए हमने वहां पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, रेज बेड टेक्नोलॉजी, इस पे सारी बीजे मसाला फसलों को जो अनुसंधान का कार्य था, चाहे वो एग्रोनॉमिकल ट्रायल्स हों, चाहे वो आपके दूसरे ब्रीडिंग के ट्रायल्स हों, पैथोलॉजी के ट्रायल्स हों, सब उन पर आयोजित किए और साथ साथ प्लग ट्रे नर्सरी रेजिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन इन फसलों में किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लाल, मेंबर एग्रीकल्चर, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
नई दिल्ली से बोल रहा हूं। आज आईसीआर के राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी फार्म अजमेर के रजत जयंती समारोह में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में और वैल्यू एडिशन में हमने एनआरसीएसएस में करीब 30-40 प्रोडक्ट बनाए, जैसे मसाले के पाउडर, क्रायोजेनिक पाउडर, विभिन्न प्रकार के ओलियोजिन्स, सुगंधित तेल, मेथी के बिस्किट मसाले में मिलाकर, और बहुत सारे पेय पदार्थ जो कि अब तक अवेलेबल नहीं थे। नमस्कार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तबीजी अजमेर स्थित राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर एस एन सक्सेना, प्रमुख क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड़ामलानी बाड़मेर, यहाँ प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं 16 वर्ष इस संस्थान से जुड़ा रहा। जब इस संस्थान का शैशव काल था, सन 2007 में मैंने इस संस्थान को वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में ज्वाइन किया और 16 वर्ष यहाँ अपनी सेवाएं देने के उपरांत मैं यहाँ से स्थानांतरित होकर बाड़मेर क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र में कार्य कर रहा हूँ। मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये संस्थान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत हद तक सफल रहा है। वो चाहे बीजीय मसाला फसलों की उन्नत प्रजातियों का विकास हो, उनकी उत्पादन तकनीक हो, उत्पादन तकनीक में नवाचारों का प्रयोग हो, या पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग की बात हो, उत्पादन तकनीकों में मशीनीकरण का प्रयोग हो, सभी कार्यों को लेकर के संस्थान ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। नमस्कार सभी गणमान्य अतिथियों, वैज्ञानिकों, किसान भाइयों और बहनों और खास करके मीडिया के कर्मियों। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस शुभ अवसर पर जहाँ एनआरसी बीज मसाले पे जो काम करता है, एनआरसी सी स्पाइसेस, इसके रजत जयंती समारोह में, और ये विगत 25 सालों से इस क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी रहकर कार्य कर रहा है, जिसके शोध के जो चाहे किस्म के रूप में हो, चाहे तकनीकी के रूप में हो, जिसे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि यह संस्थान जो है हमारे पूर्व महानिदेशक और सेक्रेटरी डेयर प्रोफेसर आर.एस. प्रोदा जी के से निकला, जहां ये बनाया गया था 2000 में, जब ये 19 जनवरी को स्थापना की गई थी। और इस दिन से जब ये आया प्रकोप में, तब से ये पूरे देश के विभिन्न दिशाओं में, राज्यों में जहां ये बीज मसाले की खेती की जाती है, उसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहा है और तकनीकों के विकास के द्वारा सभी किसानों को बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, जिससे उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये संस्थान 25वां अपना रजत जयंती मना रहा है, और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके योगदान से ही कई किसान सुदृढ़ हो चुके हैं, और राजस्थान, गुजरात जहाँ पे ड्राई लैंड है, वहाँ पे ये एक खुशहाली का बहुत मुख्य जरिया बन चुका है। शोध कार्यों में तो इन्होंने बहुत ऐसी किस्में बनाई हैं जिसमें जो सघनदीय है, उसमें जो तेल की मात्रा है और उसमें सहिष्णुता है, और ऐसा है कि जिससे लागत में कमी आ सके। साथ ही इन्होंने कई एसओपी और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई है, जिससे कि मसालों में जो कीटनाशक रसायनों का उपयोग कम हो सके और उससे हम एक सिस्टम मोड में काम करें, इस पे कार्य हो रहा है। साथ ही कई इसमें जीवाणु हैं जो रोग के लिए प्रतिरोधीपन देते हैं, और लवण के लिए या क्षारीय भूमि है वहाँ पे भी इनको बहुत भली भांति उगाया जा सकता है। हमारे जो वैज्ञानिक यहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ हमारे साथी कार्य कर रहे हैं, और इनके जितने भी कर्मचारी हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगी कि उनके आने वाले जो साल हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, और ये एक से एक बढ़िया किस्म जो किसानों को मुनाफा दे सके, उनकी बढ़ोतरी में कार्य आ सके।
तो उसको ये आगे बढ़ाएंगे और नवाचार के माध्यम से ही किसानों को सुदृढ़ बनाएंगे और उसे एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उभारेंगे, जिससे कि भारत जो है अमृत काल में बहुत आगे बढ़ जाएगा और मसाले के क्षेत्र में हम आगे हैं और हमेशा अग्रणी रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में संस्थान के निदेशक तथा पूरे स्टाफ को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि जिस तरह पिछले 25 वर्षों में इस केंद्र ने अलग अलग मौक़ों पर अपनी योग्यता देश के सामने रखी है तथा बीजीए मसालों में अपना योगदान दिया है, उसी तरह आने वाले समय में भी यह एक देश का सबसे इम्पॉर्टेंट केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उभर कर निकलेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और आशा है कि ये पूरा साल तथा आने वाले समय में भी आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। I am Dr. Ajit Kumar Karnatak, Vice Chancellor of Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur, Rajasthan, and I would like to congratulate ICR, NRCSS, and the director, Dr. Vinay Bharadwaj ji, and all NRCSS faculty members and staff on the occasion of their Silver Jubilee year and Foundation Day. Thank you. राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर को उनकी रजत जयंती स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। पिछले 25 वर्षों में यह केंद्र बीजीए मसालों पर अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी प्रसार में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस केंद्र ने जलवायु सहनशीलता, बीमारियों से बचाव और बीजीए मसालों की उत्पादकता में वृद्धि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस केंद्र ने 20 से अधिक उच्च उत्पादकता और तनाव सहिष्णु किस्मों का विकास किया है, जो इस केंद्र की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं इस केंद्र की टीम को उच्चता और नवाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आईसीआर के बागवानी विभाग संभाग की ओर से मैं इस केंद्र के निदेशक, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों और सभी सहयोगियों को उनके सतत प्रयासों के लिए बधाई देता हूं और भविष्य की सफलता की शुभकामना करता हूं। मेरा सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम जसरोटिया, एडीजी प्लांट प्रोटेक्शन और बायोसेफ्टी। आज राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र अपना 25वीं सालगिरह मना रहा है और इस शुभ अवसर पे मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इन 25 वर्षों में आईसीआर, एनआरसीएसएस की एक समर्पित टीम द्वारा सब कुछ संभव हो सका।